Hello everyone, Hello everyone, good evening. Welcome back to the session. I would rather say hi Parv Nimishika, hi Krivish, hello Vaibhav Piyush, hi Abhishek Nisha. Good evening. Welcome to the session. Hello Shri. I can see some other people also, but not their names. So if you can just type a hi, that would be really great of you. So today we are going to get started here again with that GK thing which we were doing right now. So let's get started with the first question itself. But उससे पहले बता दूं that guys please, now it's a time or a phase of your preparation where you have to focus a lot on how are you planning to retain all the information. तो इस केस में सिर्फ मेरी इंफॉर्मेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट. वट एवर यू हैव लर्न, वट एवर यू हैव मेड नोट्स ऑफ, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट विथ अदर पीपल. अदर पीपल से मेरा मतलब है कैन बी योर फ्रेंड्स, फैमिली, कैन बी योर जूनियर्स, कैन बी योर सिबलिंग्स, एनी वन ऑन दिस अर्थ विच इज पॉसिबल फॉर यू टू डू. वाई आई एम सेइंग सो? बिकॉज अगर आप उसके बारे में बात करोगे, so it will not only help you to gain more points about it, but it will help you to keep that in your mind for a longer period of time. ठीक है, ये याद रखना. Webhub Telegram link is you can directly type crack that in Telegram or open any one of my video. रुक जाओ, I'll share that with you. Uh, so we go. Hi Komal, hello Neha, welcome to the session. चलिए, ये रहा टेलीग्राम का लिंक, मैंने पिन कर दिया है. Hi Moon, hi Shubham, welcome to this session. Hi Smita. Okay guys, we'll quickly get started. Here comes the first question. तो मैं यही बोल रही थी कि whatever you are learning, please discuss it with people around you. That's the safest and the best way to retain all the information. And क्योंकि ये Unacademy के platform पर है, तो poll आएगा, so don't answer in the chat. I repeat, don't answer in the chat. Okay, I'll just launch the poll. एक second, I'll just configure it and so that it's easier and faster for me to do it for you. Hold on. थोड़ा आंसर अपने अंदर दबा के रखिए और 5-6 सेकंड्स के लिए. मुझे पता है आपको आंसर पता है. Just give me another 10 seconds or 5 seconds would be enough. Okay. All right. So poll खुल जा. Okay. So the poll is going to get started quickly on your screen. Launched in, देखो ये इसमें ऑलरेडी इतना टाइम लग गया है. तो अभिषेक क्या बोला मैंने? आई टोल्ड यू टू कंट्रोल द आंसर, राइट? ठीक है, 30 सेकेंड्स फॉर एवरीवन, गो फॉर इट. ये वाले में काफी टाइम दिया है क्योंकि आप लोगों को पता है कि बात नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को काफी टाइम मिल चुका है बाय द टाइम आई वाज सर्चिंग द पोल. फिर भी काफी गलत आंसर्स. वाह गाइस. Kanheri caves, just because it's related to Buddha does not mean it goes to Bihar. And time is up. Well done, everyone. Krivish, Shayan, Nimishika, Komal, Abhishek for the correct answers. Congratulations. Aha. अरे अरे अरे, बोधी ट्री तक पहुंच गए क्रिविश. ओके फाइन. सो कन्हेरी की बात करते हैं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट कन्हेरी एज सच. सो कन्हेरी इज प्रेजेंट इन महाराष्ट्र. क्विक नोट ले ले इसका. 3-4 पॉइंट उठाएंगे नोट से हम लोग. नंबर 1 पॉइंट होगा दैट इट इज लोकेटेड इन द संजय गांधी नेशनल पार्क. तो ये आपकी एक और लर्निंग हो गई कि संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई में प्रेजेंट है. 2 points. Hi Nimisha, hi Himanshu, welcome to the session. A set of tourist amenities were inaugurated by the Union Minister of Tourism. ये कौन है? जी किशन रेड्डी. Number 4. 4 point मिल गए हमें यहाँ से. Kanheri has around 100 caves. Okay, that is why it's special. Point number 5. And ASI का full form. Point number 6. Archaeological Survey of India. इन्होंने निकाले हैं खोज कर. The cave complex demonstrates the Buddhist style of art and architecture with the Buddhist sculptures. Okay. And ये सारे sculptures किस date के हैं? 1 to 10th century. Point number 7. 7 points. Wow. Congratulations, everyone. Hi, Raghav. Welcome to the session. Here comes the second question, everyone, and quite an obvious answer of it. Okay. So I'll start the poll and give you 30 seconds only. I believe you know the answer. Highest weather station, dash में ही होगा. I mean,
हाईएस्ट पॉइंट पे ही होगा और क्या. हाईएस्ट वेदर स्टेशन विल स्टे इन द हाईएस्ट माउंटेन. And you guys know the answer. Krivish, Prem, Ray, Nisha, Komal, Abhishek, Shri, Nimishika, Neha, Himanshu, Nimisha, Sadik, Smita, Parv and Moon. Well done. अरे अरे अरे, ये कौन चले गए कंचनजंगा की तरफ. नहीं नहीं, माउंट एवरेस्ट के होते हुए कंचनजंगा कहाँ से आएगा. इट्स नॉट द करेक्ट आंसर. लीडर बोर्ड को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं. रिद्धि, अंशुल, एसजे को वेलकम बोलते हैं. एंड लेट्स गो टू द करेक्ट आंसर, दैट इज माउंट एवरेस्ट. थोड़े से पॉइंट्स यहाँ से कलेक्ट करते हैं. Point number one. The team of experts from National Geographic Society, number one, has installed the world's highest weather station on Mount Everest. Point number two, which is at an altitude of 8,830 meters. Point number three. The station का aim क्या है? Objective. हिमांशु हमेशा मुझसे ये question पूछता है, ठीक है? मैम objective क्या है? So the station aims to automatically measure various meteorological phenomena. तो कैसा कैसा वेदर है, क्या प्रेडिक्शंस है, कब क्या आने वाला है, थिंग्स लाइक दैट. नेपाल की एक डिपार्टमेंट है हाइड्रोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी की, जिसे हम डीएचएम भी कहते हैं. पॉइंट नंबर 5 टू नोट हियर. नेशनल ज्योग्राफिक के साथ उन्होंने एक माओ, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किया है to operate all the 5 automatic weather stations installed by Nat Geo. And under this MOU, the Nat Geo team will operate the stations till 2025 before transferring the technology to Nepal in 2026. तो ये एक important current affairs है, potential current affair, ठीक है, जिसका आपको ध्यान में रखना है. I'm doing good, Riddhi. How are you? Hello, Ritvika. Welcome to the session. तो हमने यहाँ से भी 6 points उठाए हैं, guys. मैं आपका memory test लूंगी after 5 questions. Question number 3 on your screen now. Get going. काफी इजी है ये, और इसका एक पर्पस बताऊंगी. इस क्वेश्चन को देने का पर्पस, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दूंगी, 45 सेकेंड्स. इसका एक पर्पस है. वेरी गुड नेहा. ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है विच इज करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, जो कि मेरा फेवरेट सेक्शन है. वेरी गुड एवरीवन. नेहा, रिधि, कोमल गुड. हिमांशु, सुमित, स्मिता, निमिशिका, प्रेम गुड. Aha, very good, Shri. That's the reason I said it is a CA oriented question. Okay. Hello, Raghav. Good evening. So I'll share the leaderboard pehle to, and secondly, we'll congratulate Komal, Nimishika for all the 3 correct answers so far, and good going others as well. And चलिए इसका आंसर निकालते हैं. चालुक्य डायनेस्टी है. ओके. नाउ द सन टेम्पल एट गुजरात मोधेरा विलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है. ये पूरी लोकेशन आपको दे के रखी हुई है, तो ये पूरा एज ऑल एक पॉइंट है. गुजरात में मोधेरा विलेज में सन टेम्पल है, याद रख लो. इट वॉज बिल्ड अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चालुक्य किंग. तो हमें डायनेस्टी का नाम पता चल गया, वो तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है. किंग का नाम है भीमा वन. इन द अर्ली सेंचुरी ऑफ 11th सेंचुरी. ये इंपॉर्टेंट नहीं है. It is located on the bank of river Pushpavati. This is important. Point number 4. And it became a UNESCO World Heritage Site in 2014. 5. अगर ये याद रख गया तो बहुत अच्छी बात है. 6 points which you guys gathered from this question as well. अभी तक हमने 3 questions किए हैं, हमने 6-7 points हर question से उठाए हैं. All right, moving forward to the 4th question. ये काफी easy question है, इसको वापस मैं सिर्फ 30 seconds ही दूंगी. Okay, and kind of confusing also. तो अगर आपका आंसर नहीं लगा तो परेशान नहीं होने का, because आपने कुछ नया सीखा. मैं 45 seconds ही देती हूँ. Hi Ishan, welcome to the session. Krivish, Nimishika, Neha, Nimisha, क्या बात है, very nice. तो जिस जगह पे ये प्रेजेंट है, उस जगह की लैंग्वेज में थेरी का मतलब रेड होता है. निमिषा, राघव, गुड गोइंग. अच्छा, दैट्स अ गुड गेस. क्रिविश,
बट बहुत लोगों को ये डाउट होगा कि उस जगह पर डेजर्ट कैसे है. थैंक यू श्री, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग इट टू बी अ गुड क्वेश्चन. मैंने खोज के निकाला है. All right, here's the leaderboard for all of you. Nimishika is the only one so far gaining all the 4 out of 4 points. Well done, Nimishika. And then we have Krivish, Neha, Komal with 3 correct answers. Nimisha, Himanshu, Abhishek, Prem, Smita with 2 and Shayan with 1. Acha, theek hai. Hi Sonia, welcome to the session. Actually, there's a Tamil movie on this. Oh, really, Shri? That's interesting. I didn't knew that. Okay. हाँ सादिक पता है मुझे. I can guess that. All right, so Mohit, welcome to the session and let's gather some points about it. थेरी डेजर्ट तमिलनाडु में प्रेजेंट है. थेरी का मतलब जैसे मैंने आपको कहा सैंड ड्यून, रेड ड्यून्स होता है. रेड सैंड ड्यून्स कवर्ड है इस पूरे डेजर्ट में. ठीक है, जो इस पीरियड को क्वार्टरनी पीरियड को रेफर करता है. मतलब 2.6 मिलियन ईयर्स अगो. उफ, टू मच. Going back, not going back, going forward to the fifth question. Read it quickly. I'll give you 45 seconds to answer it. This is a foreign question, guys. I mean, foreign से मेरा मतलब है international question. So go for it. All the best. Komal, Neha, Nimishika, Ishan, well done. Krivish, Smita, Mohit, Sumit, Nimisha, Shubham, Raghav, Sonia, and Ray. Good. अच्छा जा रहे हो आप लोग. जिनके आंसर सही नहीं लग रहे वो नोट करेंगे अच्छे से. ठीक है, कि कहाँ गलत हो गए और क्या एडिशनल हमने आज नया सीखा. 7 seconds. All done. Here's the leaderboard. Nimishika 5 out of 5, Krivish, Neha, Komal 4 out of 5, Nimisha, Smita 3 out of 5, and Himanshu, Ray, Abhishek, Prem 2 out of 5. Good job. So let's start talking about this. इसकी आंसर स्लाइड पर चलते हैं directly. So geologists have discovered 1.2 billion old groundwater. Like groundwater का भी age है, okay, which is about 3 kilometers below the surface of this place, which is called as Mob Kotsong. I'm not sure if I'm pronouncing it right. Now it is a gold and uranium mine actually. ये जगह जो है ये gold और uranium mine है. तो ये आपके लिए relevant हो सकता है जानना. This ancient groundwater is enriched with high concentrations of radiogenic products. जैसे uranium and other radioactive elements are naturally found in this. So they provide information of cohabiting the microorganisms which previously were discovered in the deep subsurfaces. इनके हेल्प से ही एक्चुअली उन्होंने एज निकाला है, वरना पानी का क्या एज. ठीक है. ऑल राइट, वेरी नाइस Krivish. Okay, let's move down to the next question. This is interesting. हर घर जल. अब हम गवर्नमेंट स्कीम्स पे आ गए हैं. Our very own favorite section. Go for it. All the best. वाह Krivish, कोमल, निमिषा, निशा, नेहा, अंशुल, रुधि, सोनिया, पर्व, ईशान, अभिषेक, रे, मोहित, सादिक as well. चलो चलो, we have time. 20 seconds are still there. ये एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नेम लिखा है यहाँ पे. ठीक है, so don't get confused. इसमें काफी कुछ है हमारे पास लर्न करने के लिए. All right, Moon, Nimishika, Himanshu, well done. Here is the leaderboard. Nimishika ने finally इस क्वेश्चन को भी बचा लिया. 6 out of 6. Krivish, Komal, Neha, good job. 5 out of 6. Nimisha 4, Ray, Abhishek, Smita, Himanshu 3, and Nisha 2. It's in my state. Oh, very good, Abhishek. Finally got right, Anshul. Congratulations. हाँ बिल्कुल Krivish, ये न्यूज में भी था. Manikandan, welcome to this session. So the answer of this question is मध्य प्रदेश. चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं. ये डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है and this district has become the first हर घर जल certified district of the country.
सर्टिफिकेट मिला है ऐसे ही नहीं बोल के. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द दरवाजा ऑफ दक्षिण. अब ये सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ टेल मी द नेम ऑफ द स्टेट, इट कैन बी टेल मी द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. दैट्स योर आंसर, नंबर 1. It can ask you which district is called as Darwaza of Dakhin. This is your answer. Which state has Darwaza of Dakhin? This is your answer. ठीक है. दरवाजा ऑफ दक्षिण इज फेमस फॉर ए बी सी डी. एक ऑप्शन होगा हर घर जल. दैट इज योर आंसर. तो अगर आप उस क्वेश्चन के पॉइंट्स को यानी आंसर को अच्छे से समझते हो, मेरे साथ डिस्कस करते हो, तो आप अपने आप को उस चीज के अराउंड और 10 क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर लेते हो. सो दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न जीके. अदरवाइज जीके कभी खत्म नहीं होने वाला, और जीके कभी भी किसी की भी अच्छी नहीं जाएगी अगर कोई जीके सिर्फ रटने का प्लान कर रहा है तो. कभी नहीं होगा वो. ऑन योर फेस आई एम सेइंग दैट. आप तोता नहीं हो, आप ह्यूमन बीइंग हो, एंड इवन तोता की भी लिमिटेशन होती है. After the launch of Jal Jeevan Mission, that is point number 5, in the 2019, Panchayat representatives of Pani Samiti and district officials of Barhanpur took to the efforts to achieve the functional tap water connections to so many rural households. And ये सब कुछ उन्होंने सिर्फ 34 months के अंदर किया है. तो इतना काम करेंगे तो सर्टिफिकेट तो देना पड़ेगा, है ना. Okay guys, let's move quickly to the next question. Question number 7. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. चलिए शुरू हो जाइए. काफी फेमस यूनिवर्सिटी है ये. वाओ. शुभम, सुमित, श्री, मोहित, नेहा, स्मिता, गुड जॉब. रिधि, राघव, पर्व, रे, निमिषा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. विवेकानंद तो कौन चला गया? विवेकानंद कब? हाँ, ओके. निमिषिका maintaining her 7th correct answer streak. अभिषेक, निमिषा, सादिक, मून, वेरी नाइस. अरे वाह, 65.22% करेक्ट आंसर्स. वेरी गुड. लीडर बोर्ड पेश किया जाए. निमिषिका ultimate ruler, 7 out of 7. Then we have Neha with 6 correct answers, Krivish, Komal, Nimisha with 5, Smita, Ray, Abhishek, Himanshu with 4 and Riddhi with 3. Good going. काफी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट पोजीशन. बहुत अच्छी बात है, मजा आता है ऐसा देखकर. पंडित मदन मोहन मालविया. So in 1915, the year is important here. Lord Hardinge, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश रूल में उस वक्त कौन था. BHU एक्ट एक पास हुआ था. BHU एक्ट एक पास हुआ था बाय दिस पर्सन, पंडित मदन मोहन मालविया, जिन्होंने BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की थी. Idea was mooted as early as 1904. So 5 important things to be learned from this screen. Clear to all? Next question. हाँ, पर वो फाउंडिंग कमिटी में है ईशान. वो नहीं है जिन्होंने एक्ट पास करवाया. ठीक है, तो कमिटी और पर्सन रेलिवेंट है, आई मीन डिफरेंट है. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 एवरीवन. अब यहाँ पर ऑप्शन में मदन मोहन मालविया को देखकर सिलेक्ट मत कर देना, जस्ट फॉर योर चेक. एंड इस क्वेश्चन का आंसर देखकर एक जन बहुत खुश होंगे और वो होंगे ईशान. हाँ. सादिक, को फाउंडर से मुझे पिक्चर सीजन 2 के एक डायलॉग याद आ गई. ट्रेलर में भी था वो डायलॉग. हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं ना. नहीं, फाउंडर कहते हैं. तो फिर नहीं, एक्चुअली द थिंग वाज हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. तो फिर जीत कर हारने वाले को क्या कहते हैं? So some like the other person said founder. So the other person corrected, Nana, co-founder.
Okay, I can see so many correct answers. Well done, everyone. Here's the leaderboard. Aha, Nimishika 8 out of 8, Neha 7 out of 8, Komal Nimisha 6, Krivish Smita Abhishek 5, Ray also, Himanshu also 5 and Riddhi 4. ये तो काफी सेम है लास्ट टाइम जैसे. वो तो इस बार की एडिशन है. इस बार उन्होंने तो बियर से सीधा किसमें जंप मारा था. तू क्या है. All right. So Annie Besant is the right answer, and so sorry for the spelling mistake. Annie Besant has joined the Congress in 1914. Together है ये, ठीक है, and founded and edited the journals via the. Okay, this will help you. This will help you. Commonweal and New India उनके journals थे. Point number 2 to note. Point number 1 to note. वो Congress politics में थी and she joined it in 1914. To propagate and translate her ideas of constitutional agitation. ये उनका purpose था. And to force the British to concede the home rule to Indian people. Number 5. Okay. Nimishika, ईशान was the clue. बस जो स्मार्ट लोग होते हैं वो ऐसे क्लूज का वेट करते हैं. वेरी गुड. 9th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एवरीवन. काफी इजी है ये, क्योंकि काफी इजी है ये. चलो, एनीवेज आई विल गिव यू टाइम. सिलेक्ट योर आंसर क्विकली. कर्नाटक से इजीली कनेक्ट कर सकते हो. नेहा, अंशुल, शुभम, प्रेम, रे, निमिषा, गुड जॉब. काठियावाड़ कहाँ है. गुजरात में है. उत्कल कहाँ है. उड़ीसा में है. कोंकण कहाँ है और कोरोमंडल कहाँ है. अगर ये याद कर लो तो आंसर मिल जाएगा. चलो 50-50 दे दिया. निशा, सोनिया, ईशान, मोहित, वेरी गुड. निमिषिका, वेरी नाइस. स्मिता, मून, टू गुड. कोंकण कहाँ है. राघव, सादिक, good job. Here's the leaderboard. निमिषिका, नेहा, निमिषा, कोमल, स्मिता. ओके, कोमल स्मिता में थोड़े से चेंजेस हैं. बाकी रे, हिमांशु, कृषिव, अभिषेक, राघव, ये सब तो ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है. नहीं, कुछ लोग नई एंट्री आए हैं लीडर बोर्ड में. वेरी गुड. हाय सवालिया, वेलकम टू द सेशन. हाय आयुषी, वेलकम टू द सेशन. ओके, कोंकण वेस्ट में है. अरे, कोंकण जो है इट इज वेस्ट में होना इज नॉट अ प्रॉब्लम. आई एम टॉकिंग अबाउट किस एरिया, किस स्टेट में फॉल करता है, मुझे वो बताइए आप लोग. विच स्टेट में फॉल करता है. महाराष्ट्र, एग्जैक्टली. ओडिशा, गुजरात. तो कोरोमंडल कर्नाटक. ओह, आई डिड नॉट टेक द आंसर. नो, कोरोमंडल. ये आपको जीके पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, इस क्लास के बाद ही. So the Europeans named the Coromandel coast as Carnatic coast. किन्होंने नेम किया था. यूरोपियंस ने. And it is place that is witnessing the historic Carnatic War. This Carnatic War happened between English and French people. इंडिया में आके लड़ रहे हैं, बताओ. मराठी. Yes, Anshul, absolutely. चलो, तो let's move to the next question, everyone. Thanks for GK PDF. This is the only PDF. हाँ, वन थिंग यू कैन डू सादिक, मेरे पुराने जीके के जो सेशंस है ना, इसी अन अकेडमी के प्रोफाइल के अंडर, आप उन्हें जाके देख सकते हो या फिर डाउनलोड कर सकते हो. वो एक्सेस आपको है एज अन अकेडमी लर्नर. क्वेश्चन नंबर 10 एवरीवन ऑन योर स्क्रीन. लेट्स सी किन किन को ये आंसर पता है. वाह सुमित, ये करंट अफेयर्स है गाइस. ला रोडा इंटरनेशनल चेस कंपटीशन. ला रोडा कहाँ है. Wow, so many correct answers. Very good. We still have 10 seconds. जिन्होंने आंसर नहीं किया वो फटाफट आंसर कर दें. एंड जिन्होंने आंसर कर दिया वो मुझे बताए ला रोडा कहाँ है. कोई बात नहीं श्री, आज दिन खराब नहीं है. आज दिन अच्छा है कि आप इतने सारे नए चीज जान रहे हो.
आंसर सही लगने से क्या फायदा होगा? आपको क्या लगता है निमिषिका आज क्या लेके जाएगी इस क्लास के बाद? कुछ नहीं। बट श्री लेके जाएंगे। श्री अभी तक 10 नए क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आई मीन नए चीजों के बारे में जान चुके हैं, तो यहाँ हारना आपके लिए बेनिफिशियल है। लीडर बोर्ड आपके स्क्रीन पर है और इसी बात पर निमिषिका ने एक गलत आंसर दे दिया। क्या क्या बात है, नजर लग गई निमिषिका, सॉरी। Okay, so 9 out of 10, but still at the first place. We have Neha, Nimisha at the second and third place with 8 correct answers. Komal, Ray, 7. Smita, Raghav, Himanshu doing a great job, 6 correct answers. Krivish और ईशान को 5 मिले, वेरी गुड। स्वीडन में नहीं है, स्वीडन में नहीं है ईशान, स्पेन में है, स्पेन में। ओके ठीक है, तो ये तो एक एडिशनल पार्ट मैंने बताया। डी गुकेश, मैंने लिटरली इनका नाम मुकेश स्पेल आउट करने वाली थी, जस्ट आई करेक्टेड माई सेल्फ, और सिर्फ इसी वजह से मुझे इनका नाम याद है, ठीक है। यस यस श्री, एब्सोल्युटली ट्रू, ओके, दैट ही इज अ ग्रैंड मास्टर ऑल्सो। अरे रुक जाओ, हाँ, इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश clinched the victory of the 48th La Roda Championship. It was a chess championship, scoring 8 points from 9 rounds. He's 15 years old only, but देखने में नहीं लगता है. He's unbeaten through 9 rounds and he defeated Israel's Victor. Okay, his compatriot R. Pragananda, another young GM, took the third spot. ये भी इंडिया से है, ठीक है, फाइन। अब इसके बाद क्योंकि आप लोग सब अनअकैडमी की प्लेटफॉर्म पर हो, तो बिल्कुल निमिषिका सही जवाब। विज्ञापन तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बट 1 मिनट तक मेरे साथ रहो। आई विल जस्ट शिफ्ट यू टू द 11th क्वेश्चन एट द एंड ऑफ अ मिनट। तो सभी लोग ध्यान से सुने, आप लोगों के लिए शायद ये इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन आपके अराउंड कोई भी अगर एमबीए देने का सोच रहा है इन 2023, तो उन्हें जरूर ये बैच रेकमेंड करें। सक्सेस बैच में बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटर्स पढ़ा रहे हैं। ये बैच 30 मार्च को शुरू होने वाला है और इसको एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड प्रयाशा23 यूज कर सकते हैं। इसके साथ अभी ये करना बहुत बेटर है, क्योंकि अभी 25% ऑफ पर मात्र आपको 22,500 में पूरे साल भर की सब्सक्रिप्शन मिल रही है। बट अगर आपके अराउंड कोई जेन्युइनली बच्चा है, आई मीन जूनियर है आपका, जो कि 2 साल बाद देने का प्लान कर रहा है, तो इतने कम प्राइस पर मिलना इज वेरी 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 डिफिकल्ट। तो 30,000 2 साल के लिए इज अ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ ROI। आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आप लाइव क्लास देखते रहोगे, आप टेस्ट मॉक सब कुछ देते रहोगे। इट्स नॉट अ बैड आइडिया दो। एंड बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। अगर आप आइकॉनिक पे जाते हो तो आपको एडिशनली फिजिकल नोट्स दिए जाएंगे, GDPI की प्रिपरेशन कराई जाएगी, लाइव 1-on-1 मेंटरशिप होगी आपके फेवरेट मेंटर के साथ। आप डाउट पूछ सकते हो कभी भी, डिस्कॉर्ड का एक्सेस आपको दिया जाएगा ताकि आप अपने मेंटर से बात कर सकते हो। एंड ये लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, अनअकैडमी कैट ट्राइब एक नया फीचर है, जहां आप अपने फ्रेंड्स के साथ अगर साथ में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो रेफरल बोनस के साथ साथ आपको 6 मंथ की एक्सटेंशन भी मिलती है अपने कैट के सब्सक्रिप्शन पे। एंड एम्पावर आर सीरीज में IIM के ग्रेजुएट और FMS के ग्रेजुएट आने वाले हैं आपको मेंटरशिप सेशंस देने के लिए अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो अगर आप एक प्लस या आइकॉनिक लर्नर हो तो यू कैन एक्सेस दिस इजीली ऑन द ऐप। Thank you so much. Question number 11 जल्दी से, and I will start the poll also जल्दी से। कहाँ गया मेरा पोल? ओके हियर। ये भी टैलेंट है नहीं, एक सांस में पूरे ये ऐड बता देना। अब मुझे पानी की जरूरत है। Hello, Swalih. Hey, I'm not pronouncing your name right ना, sorry. वेलकम टू दिस सेशन। पोल ऑन है, आप फटाफट आंसर कर सकते हो। एंड आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कल की एक लाइव सेशन पे में अनअकैडमी पर ही होगी वो लाइव सेशन, वो होगी केस स्टडी एनालिसिस, ठीक है। तो उन्होंने केस स्टडी एनालिसिस का नया सीरीज स्टार्ट किया है एंड आई वुड लव ऑल ऑफ यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। द रीजन फॉर दैट इज, ये मत सोचना कि वो कैट वगैरह के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोगों को एक ना एक दिन GDPI देना ही है, तो इसीलिए आप सबके लिए यूजफुल होगा। और आपको थोड़ा पता भी चलेगा कि 2 साल बी स्कूल में आपकी क्या हालत होने वाली है केस स्टडीज के साथ।
तो निमिषिका को पहले कंग्रेचुलेट करते हैं नेहा निमिषा के साथ. वेरी गुड ऑल ऑफ यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. And let's get started with the answer of the question. Hello Sanket, good evening, welcome to this session. काफी लेट आ गए आज तो आप. एंटी डोपिंग एनालिसिस, NDTL की फुल फॉर्म आती हूँ सादिक उस पे. अभी तक कोई भी नहीं है. आई डोंट लाइक केस स्टडीज. National Dope Testing Laboratories, okay, has indigenously developed the 6 new and rare reference materials, जिसे हम RM भी बोलते हैं. इसका नंबर भी याद रख लेना, 6. It is the purest form of chemical required for anti-doping analysis in all the WADA accredited laboratories in the world, across the world. They have been developed by NDTL, National Dope Testing Laboratory, in association with the National Institute of Pharmaceutical Education and Research. बाप रे बाप, इतना लंबा फुल फॉर्म. ये कहाँ है? ये गुवाहाटी में है. एंड CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मशीन, IIIM, ये कहाँ है? ये जम्मू में है. 7 पॉइंट्स टू बी नोटेड. वैसे कल वाली जो केस स्टडी है वो मुझे अच्छी लगती है, इसलिए जब मुझे अनअकैडमी ने बोला तो मैं बोली वही कराऊंगी. वो मुझे अच्छा लगता है. थोड़ा सा तो इंटरेस्टिंग है वो. एक्चुअली में एक डायलेमा है, एक प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व करनी है. आई टेल यू अबाउट दैट. बट उससे पहले अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. एंड इस पॉइंट में से 7 पॉइंट्स है जो आप नोट करोगे. एंड आई हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टेल यू पीपल, ओके, कि मैंने आपको बोला था कि मैं 5 क्वेश्चन के बाद आपके एक मेमोरी टेस्ट लूंगी, बट मैंने लिया नहीं. तो अब मैं लूंगी 2 मेमोरी टेस्ट और आंसर आपको चैट में करना है. ठीक है? रेडी एवरीवन? ठीक है. पहला क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था सन टेम्पल के बारे में, जो कि गुजरात के मोधरा विलेज में प्रेजेंट है, जिसकी ड्राइंग्स वगैरह चालुक्य डायनेस्टी से मतलब वो चालुक्य डायनेस्टी में बनाया गया था. तो वो किस रिवर के बैंक पे प्रेजेंट है? ये हार्ड क्वेश्चन दिया मैंने. देखते हैं कैसे कौन आंसर करता है. किस रिवर के बैंक पे प्रेजेंट है? मैं देती हूँ टाइम आपको. सोचो, याद करो, and send me the answer in the chat. I'll wait for 45 seconds. निमिषा, अरे नहीं राघव, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, ये टीटा क्वेश्चन है. वेरी गुड कोमल. अरे नहीं नहीं अंशुल, क्रोम मत यूज करना. प्रेमवती, बहुत क्लोज हो शुभम. इट्स पुष्पा. पुष्पावती. चलो, जेन्युइन लग रहा है, आपने गेस किया है जेन्युइनली. Good, good. Pushpavati is the answer, guys. Remember it. Memory test number 2. Memory test number 2. Everyone ready? तो हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने ये पूछा था आपसे कि साउथ अफ्रीका के मोआब कोट्सोंग वाली जगह पर आपको 1.2 बिलियन ईयर पुराना ग्राउंड वाटर मिला था. तो स्पेशली वो 2 चीजों की माइन है साउथ अफ्रीका में. राघव ने ऑलरेडी आंसर कर दिया. ठीक है, तो यूरेनियम के साथ और कौन सी चीज की माइन है? राघव. चलो ठीक है. कोमल, निमिषा, निमिषिका, नेहा, वेरी गुड. निशा, निमिषिका, इट्स एब्सोल्युटली राइट. गोल्ड और यूरेनियम की माइन है. चलो, 2 मेमोरी टेस्ट में तो आप लोग अच्छा काम कर रहे हो. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पोल करते हैं उसके ऊपर. ठीक है? अरे पोल नहीं स्टार्ट हो रहा, जस्ट अ सेकंड गाइस. थोड़ा कम टाइम दे रही हूँ क्योंकि पोल लेट से शुरू किया है. 15 सेकंड्स ओनली. नेहा ओनली. थोड़ा सोच समझ के आंसर करे गाइस. Ray, Abhishek, Komal and Nimishika. Okay. So here we have Neha at the top now, comparing the time. Very good, Neha. Finally, leaderboard में कोई change आया है. Nimishika at the second position. Komal, Nimisha at 9 points. Ray is at 8. Smita, Abhishek, Raghav, Himanshu and Krivish. Okay, great job. जल्दी में यूरेनियम. अच्छा, well done, Neha.
सो न्यू दिल्ली आंसर है, कैसे थोड़ा पॉइंट नोट करते हैं। द 7th एडिशन ऑफ दिस इंडिया फार्माक्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस जो कि दिल्ली में हुई थी, थीम था विजन 2047, transformative roadmap for the future. The conference aims at bringing together the pharmaceutical industry and medical industry and medical device manufacturing players, stakeholders, and academia to discuss on the future roadmap of this industry in the next 25 years. 22 plus 25, 47. Quants. ठीक है, विजन 2047। चलो क्वेश्चन नंबर 13 करो, फिर एक मेमोरी टेस्ट लूंगी। इंटर इंटरनेशनल क्वेश्चन भी हो सकता है ये, सोच समझ के आंसर कीजिएगा। 45 सेकेंड्स दे रहे हैं। ईशान, Nimishika, can I get your GK notes please? Nimishika, do you want to give the GK notes to Ishan? ईशान, आपको निमिशिका मिल जाएंगी टेलीग्राम पे। क्रैकजैट के थ्रू जाइए और जाकर डीएम कीजिए, लेकिन परेशान मत कीजिएगा। ओके, अरे वाह, वेरी गुड एवरीवन। संकेत के भी आंसर्स लगे हैं इस वाले में। निमिशिका बैक टू द गेम विद 12 करेक्ट आंसर्स एंड एट द टॉप नेहा इसमें रह गए। नेहा, कोमल, निमिषा, 3 लोग हैं। वेरी गुड एट 10 पॉइंट्स। रे एंड 9 है, अभिषेक हिमांशु 7 है, स्मिता राघव 6 है, क्रिविश 5। बाकी आउट ऑफ यूरोप है। वेरी गुड सादिक, वेरी गुड सादिक, क्या दिमाग लगाया है। लव्ड इट सादिक, वेरी नाइस। तो यूरोप का इंटर सोलर इवेंट है, तो सिर्फ ऑप्शन जो यूरोप में है वो हमारा आंसर होगा। मेक सेंस? बिल्कुल बिल्कुल संकेत। तो इंटर सोलर ऑर्गेनाइज किया था इंडो जर्मन एनर्जी फोरम ने, फुल फॉर्म याद रखेंगे प्लीज। दिस वाज डन इन मुनीच, ओके, and it is the world's leading exhibition series for solar industry and its partner। world का leading exhibition है, ठीक है। this exhibition aims to increase the share of solar power in Earth's energy supply also। तो मतलब इंडिया के साथ साथ बाकी कंट्रीज को भी बुलाकर ये एग्जीबिशन दिखाने का पर्पस है कि भैया आप लोग भी सोलर पावर्ड हो जाओ। It will be represented by several countries and major multinational companies of the renewable energy sector, and यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन है भला? श्री भगवंत खुबा। ये गए थे इंडिया की तरफ से, क्या करने के लिए? एग्जीबिशन देखने के लिए मुनीच, ठीक है। एंड मैम गेव इंटरनेशनल करके क्लू। यस निमिषिका, ये मेरी बुरी आदत है, सॉरी फॉर दैट। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन कर लीजिए, मैंने क्वेश्चन दिखा दिया है। मैं आपको 2 मेमोरी बेस्ड टेस्ट क्वेश्चंस पूछूंगी इसके बाद। एस, सॉरी, निशा, नेहा, संकेत, हिमांशु, साक्षी, निमिशिका, कोमल। कोमल ने लास्ट 6 आंसर्स करेक्ट दिए हैं लाइन से। राघव, रे, नहीं हिमांशु, चोट लग गई। Okay. So here's the leaderboard. We still have Nimishika at the top with 13 correct answers. Neha Komal doing a great job with 11 correct answers. Nimishika Ray with 10. Himanshu with 8. And Abhishek Raghav with 7. Smita with 6 and Krivish with 5. Uh, oh, chalo. I'm happy to listen to that. That after the hectic day of your office, you feel good about the class. Thank you so much, Sanket.
बस यही एनर्जी के साथ आप नेचुरली भी पढ़ोगे ना, तो आपको कभी कुछ भी बर्नआउट वाली फीलिंग नहीं आएगी. कनेक्ट इट विद योर डे टू डे लाइफ एंड यू विल फील थिंग्स इन अ बेटर मैनर. तो चलो, ऑपरेशन फ्रेंडशिप की बात करते हैं. एट मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ द बॉर्डर सर्विसेज ऑफ द मेंबर स्टेट्स ऑफ SCO का फुल फॉर्म Shanghai Cooperation Organization was held in Delhi अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया. ये 8th मीटिंग थी और इस मीटिंग में हेड ऑफ बॉर्डर सर्विसेज आते हैं. द मेंबर अप्रूव्ड द प्लान फॉर द प्रिपरेशन एंड कंडक्ट ऑफ द जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन फ्रेंडशिप बॉर्डर इन 2022. They also approved the work plan for the group experts of the border services of SCO member states for 2023. Mm, that's great, Ishan. Thank you so much. थैंक यू. आप अच्छा लगता है आप लोग ये बोलते हो तो इट रियली फील्स गुड. लगता है कि हमने जो मेहनत की वो अच्छा किसी का कर रहा है. चलो, ओके, आई हैव अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन फॉर यू पीपल. ओके, 2 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, ओके. ये क्वेश्चन मैंने आपको ओरली पूछा था जब मैंने आपको इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश के बारे में बताया था. that he has recently won the 48th La Roda International Chess Tournament. मैंने आपसे पूछा था कि ला रोडा कहाँ प्रेजेंट है. अरे निमिषिका, वेरी गुड. चलो, क्वेश्चन नंबर 2. अब सेकंड क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी आंसर्स आना शुरू हो गए हैं चैट में. ठीक है, ठीक है, ठीक है. लाती हूँ कुछ खतरनाक सा. हाँ, तो हमने पढ़ा था माउंट एवरेस्ट के बारे में, राइट. सो माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ा था कि वहां पर सबसे हाईएस्ट वेदर स्टेशन सेटअप होने वाला है. तो किसने इंस्टॉल किया है बिफोर इट दिस टेक्नोलॉजी विल गो टू नेपाल? किस कंपनी, किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? क्या बात है सादिक, शुभम, राघव, एक्सीलेंट. क्या करते हो, लिख लेते हो या गजनी की तरह टैटू कर लिया है बदन में? Nat Geo is the right answer. Very good, very good. Claps for you people. चलो फटाफट दूसरा क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 on your screen, guys. शुरू करें? चलो, I'll start the poll. There you go. I think you guys have started noting it down. That's why you guys remember it so well, यार. Very nice. Genius लोग हो आप लोग. निमिषा, शुभम, सुमित, निशा, नेहा, कोमल. प्रेम ने फाइनली एंट्री मारी है राइट आंसर की लीग में. क्या प्रेम? रे. हाँ, निमिषिका का ओनो हो गया. निमिषिका बजाओ वो साइड में. इंस्टाग्राम का टिपिकल, इंस्टाग्राम क्या, टिकटॉक का टिपिकल ऑडियो ओनो वाला. फिर भी निमिषिका आगे हैं 13 करेक्ट आंसर्स के साथ. नेहा, कोमल भी बिल्कुल निष्ठा के साथ आगे बढ़ रही हैं 12 करेक्ट आंसर्स के साथ. निमिषा, रे 11. रे ने काफी इंप्रूवमेंट शो की है, वेल डन. हिमांशु 8 पर है. अभिषेक, राघव, निशा, सुमित, गुड जॉब. सुमित भी आ गए हैं, एंट्री कर लिया है उन्होंने अपने लीडर बोर्ड में. टॉम टूम्ब ऑफ सैंड पहली हिंदी नोवेल जो शॉर्टलिस्ट हुई थी इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए. ऑथर गीतांजलि श्री, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. उनकी नॉवेल थी टूम्ब ऑफ सैंड व्हिच बिकेम द फर्स्ट वन टू गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज. द बुक ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश by Daisy Rockwell, this name is also important, will compete with 5 other titles from around the world for prestigious £50,000 literary prize. Literary है ये, ठीक है, which is shared between the author and the translator, both of them. All right. Hi Anushka, welcome to the session. बिल्कुल बिल्कुल सादिक, समझ में आ रहा है. I can get your point. Hi Shivam, welcome to the session. We have a new question on the screen, everyone, and the poll is about to start in 3, 2, 1, go. अमर मित्रा, इसमें आप एक कॉमन सेंस लगा सकते हो. मैं हेल्प करूं?
मैं 30 सेकंड बाद हेल्प करूंगी। बिना हेल्प के तो इतना अच्छा कर रहे हो, मेरी हेल्प की क्या जरूरत। चलो अभी बता देती हूँ। टाइटल पे फोकस करो, यू विल गेट द आंसर। इफ यू गाइज हैव दैट थिंग ऑफ टाइटल पढ़कर कास्ट या फिर किस जगह से है वो सब गेस कर लेने वाली अगर आदत है आपकी तो गुड जॉब, गुड जॉब। 5 seconds लेफ्ट। मेरे नेम से। अच्छा आंसर आने दो फिर मैं बताती हूँ। And here's the leaderboard. We have Nimishika, 14 correct answers, Neha Komal, 13 correct answers, Nimisha Ray, 12 correct answers, Himanshu 9, Abhishek Raghav 8, Nisha 7, Sumit 6. That's why we love you, ma'am. I love you too, Nimishika. And Raghav, मैं बंगाली नहीं हूँ। आई एम फ्रॉम ओडिशा एंड बट मुझे पूरी बंगाली आती है अच्छे से, एकदम अच्छे से। Guessed it right because my manager is Mitra and he is Bengali. I told you ना, मित्रा के हेल्प से आप इसे सॉल्व कर सकते। बट हाँ प्लीज गाइस, प्लीज हमेशा ये मत करना, क्योंकि स्पेशली ओडिया बंगाली में भी काफी कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे अच्छा है कि ओडिया ऑप्शन नहीं है, बट ऐसे बहुत सारे फेमस नाम हैं जो आपको लगेंगे बंगाली बट होंगे ओडिशा से। सो इसको थोड़ा सा नॉट 100% यूज दिस, ओके। ममता दीदी राइट, कोमल yeah, Sadik. That is because of oh, acha. Okay, Sadik. So let's talk about this. Bengali author Amar Mitra was awarded with this year's prestigious O. Henry Award. आप इस award के बारे में थोड़ा डिटेल में जान सकते हो for this short story called as गाँव बुरो. I don't know what its meaning is. In Bengali short fiction written by the author 1977, this Adivasi culture of the state and their struggle in background to Mitra's award-winning story, the writer was awarded with Sahitya Akademi Award also in 2006. Okay, let's move forward. बुच्चा। बुच्चा के बाद मैं आपको मेमोरी टेस्ट लेने वाली हूँ। बुच्चा तो काफी न्यूज में था। एनीवेज आई विल स्टार्ट द पोल। अरे वाह, न्यूज में था इज द ओनली हिंट विच आई कैन गिव। वैसे देखा जाए तो ये चारों ऑप्शन न्यूज में थे, सो नॉट अ हेल्पफुल हिंट। आई वुड माई सेल्फ से दैट इट इज नॉट अ हेल्पफुल हिंट। हिमांशु ये हेल्पफुल नहीं था जो मैंने हिंट दिया। रशिया यूक्रेन एक दूसरे की वजह से न्यूज में है, श्रीलंका फिनेंशियल क्राइसिस की वजह से, और अफगानिस्तान तालिबान टेक ओवर की वजह से। तो सारे के सारे न्यूज में है। This was the worst hint ever, which I can give. Oh, we have correct answers from so many people. 70% right answers. Okay, here's the leaderboard. Nimishika, Neha, Komal, Nimisha, Ray, Himanshu, Abhishek, Raghav, Nishan, Nishan. Good going, everyone. Ukraine is the right answer. थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में. After images of civilian bodies were found in the streets of Bucha city, and there have been outrages across the world. तो बात तो हो रही थी कि हम सिविलियंस को हार्म नहीं करेंगे, सोल्जर सोल्जर के बीच में लड़ाई होगी, बट ये सच नहीं था। सिविलियन डेड बॉडीज बूचा में देखने को मिली थी। एंड एट यूएनएससी मीटिंग ऑफ यूक्रेन व्हिच वाज एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की and T.S. Tirumurti, who is India's permanent representative at UN, both of them condemned this civilian killings. Okay, so that's why. अच्छा फाइन, गुड निमिशिका। हाय सुरजीत, वेलकम टू द सेशन। सुरजीत को वेलकम करने के लिए 18th क्वेश्चन भी आ गया। मैं मेमोरी बेस्ड टेस्ट लेने वाली थी पर मैं फिर भूल गई हमेशा की तरह। बट ये वाले के बाद हम 3 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। नहीं ज्यादा हो गया, 2 ही करेंगे। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन गाइस। पोल स्टार्ट्स नाउ। ये तो क्रिकेट लवर्स को अच्छे से पता होना चाहिए। सुमित, रे, संकेत, निमिषा, वेरी नाइस। निमिषा, यू आर अ क्रिकेट लवर। साक्षी, निमिशिका, नेहा, वेरी गुड। स्मिता, हिमांशु, शिवम, अनुष्का, नेहा, ईशान, राघव, यस यस, अरे वाह, वेरी नाइस। बिग फैन, हिटमैन, ओके। निमिशिका के लिए दिस वाज फ्लूक, ओके। बोथ
play from Mumbai Indians too. अरे आपने तो हिंट दे दिया, ये लो. Okay, Komal, very nice. So here's the leaderboard, everyone. Good job. काफी like कुछ खास चेंज नहीं है तो मैं रीड आउट नहीं करूंगी. 2 is the correct answer और वो दो लोग हैं रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह. ओके, 5 cricketers of the year में से 2. ठीक है, and they were named along with न्यूजीलैंड के ओपनर डेविन कॉनवे, 3rd point. इंग्लैंड के पेसर ओली रॉबिन्सन, साउथ अफ्रीका वुमेन की कैप्टन डेन वैन निकर्क, and point number 5, and England skipper Joe Root was named the leading cricketer in the world. हाँ, very good. इसे विजडन क्रिकेटर्स भी कहते हैं. ओके, फाइन, 7 points. हाँ, 31 से शुरू होने वाला है. ओके, क्वेश्चन नंबर 19. अरे नहीं 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 दिखाऊंगी 19 क्वेश्चन. मेमोरी क्वेश्चन, मेमोरी क्वेश्चन, मेमोरी क्वेश्चन फॉर यू पीपल. ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगी, डोंट वरी. आई हैव वन क्वेश्चन टू आस्क यू. द क्वेश्चन इज, मैंने आपको एंटी डोपिंग एनालिसिस के बारे में बताया था. एंटी डोपिंग एनालिसिस वाले क्वेश्चन में आपको फुल फॉर्म बताए थे. ज्यादा हार्ड फुल फॉर्म नहीं पूछूंगी. मैंने आपको एक IIIM, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मशीन के बारे में बताया था. बस वो बता दो कि वो कहाँ है. IIM कहाँ है? राघव, दैट वाज क्विक. जम्मू. वेरी गुड अभिषेक, शुभम, सादिक एंड निशान, यू गाइज आर राइट. चलो एक और क्वेश्चन हो जाए. एक और क्वेश्चन, ये वाला हार्ड है. बाउंसर. ओके, so we talked about Pandit Madan Mohan Malviya, that he established Banaras Hindu University under which British person? Lord Dash. Oh, Komal, very nice. Hardinge is the right answer. Good going everyone. Question number 19 on your screen now. चलो फटाफट. If you people were typing the answer type करना बंद कर दीजिए क्योंकि पोल आने वाला है. इस क्वेश्चन को देने के पीछे मेरा एक पर्पस है. इस क्वेश्चन को देने के पीछे मेरा पर्पस ये है कि इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है. टाइम रिड्यूस कर रही हूँ 30 सेकेंड्स के लिए. पर्पस ये है कि इंडिया ने ये ऑर्गेनाइज किया है यूनिवर्सिटी लेवल पर खेलो इंडिया इन यूनिवर्सिटी गेम्स. एंड सीमैट वाले डेफिनेटली चाहेंगे कि आप इंडिया के ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े चीजों के बारे में जानो. विनर कौन था ये भी जानो. आप लोग काफी लोग जानते हैं. हाय डैक्स, वेलकम टू दिस सेशन. वेरी नाइस. देखते हैं कुछ चेंजेस हैं क्या लीडर बोर्ड पे. कुछ खास चेंजेस नहीं है. सो कंटिन्यू करते हैं जैन यूनिवर्सिटी के साथ. जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर बेस्ड है and the host, it was also the host of 2021 के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स. they bagged the top position in and they won 20, this is not important, 20 gold, 7 silvers. lovely professional university. रनर अप रहा है, फर्स्ट रनर अप. ठीक है, और पंजाब यूनिवर्सिटी सेकंड रनर अप. चलो सही है. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चंस फॉर द डे. हाँ हाँ बिल्कुल कोमल. Lord Mahavir was the dash. Okay, only 30 seconds are more than enough. Sadik minus 200 कर दूंगी आपसे. ठीक है, all right. Minus 100 for answering in the chat and minus 100 for answering wrong. Okay, good job Anushka, Sakshi, Komal, Surjit, Ray, Himanshu, Abhishek, Smita, Neha, Sadik, Mimisha and Raghav. 10 सेकेंड अभी भी बचे हैं. Is he the last Tirthankar? Is he the last Tirthankar? Yes or no in the chat? Here's the leaderboard. आहा, काफी चेंजेस देखने को मिले हैं. अब तीन लड़कियां एक ही स्कोर पर है.
नेहा, कोमल, निमिषिका, बट टाइम के अकॉर्डिंग नेहा फर्स्ट, कोमल सेकंड एंड निमिषिका सीधे थर्ड पोजीशन पे आ गई हैं। निमिषा 11th, रे सॉरी निमिषा 16, रे 16 एंड हिमांशु के साइड से सब कुछ सेम है। मीन स्कोर का इंक्रीमेंट सेम है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, ही वॉज द लास्ट, दैट्स राइट। 24th तीर्थंकर गाइज, ही इज वेरी फेमस ना, सबसे फेमस है। Birth anniversary, and he's the last Tirthankar, as I told you, is celebrated on Mahavir Jayanti all across the world. This year, Mahavir Jayanti falls on April 14. This is actually 2022 ka detail. And Jain obeys 5 principles conveyed by him: Ahimsa, Satya, Astya, Brahmacharya, and Aparigraha. Hmm. Acha, हाँ. Sumit. Question number 21. Quick, 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 everyone. Question 21 on your screen. 30 seconds for it. Shine Ray, हिमांशु, ये तीनों लोग मेरे हर सेशन में रेगुलरली आते हैं, जिसकी वजह से ये आंसर जानते हैं। शुभम, संकेत, निमिषिका, निमिषा, कोमल, डैक्स, साक्षी, ईशान, अभिषेक, सुमित। गुड जॉब। पानी पी लेते हूँ 10 सेकेंड्स के अंदर फटाफट। बाकी जो लोग राइट आंसर दे रहे, कॉन्ग्रेचुलेशन। And up. Time up. Assamese was the right answer, and Komal is now at the first position. Well done, Komal. Congratulations. Nimishika on the second. Neha has come down to the third one. काफी उबड़ खाबड़ रास्ता है यहाँ, है ना? आगे देखते हैं, अभी और क्वेश्चंस है हमारे पास। यस, मैम का सेशन हो और नॉर्थ ईस्ट का क्वेश्चन ना हो। बिल्कुल ईशान, बिल्कुल, यही तो कहा मैंने, रेगुलर ज्वाइन करने वालों को पता है। प्राइम मिनिस्टर जी ने रिसीव किया एक कॉपी ब्रेल वर्जन में। ब्रेल जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए द डिक्शनरी ऑफ हेमकोश, ठीक है, अर्लीस्ट डिक्शनरी है 19th सेंचुरी की, फर्स्ट इटिमोलॉजिकल डिक्शनरी। ठीक है, इटिमोलॉजिकल क्या होता है गाइस? क्विकली मुझे बताएगा कोई भी, इटिमोलॉजिकल क्या होता है? इजी है। इटिमोलॉजी वोकैब से रिलेटेड है, समथिंग विच एक्सप्लेन्स यू द ओरिजिन ऑफ एनी वर्ड और हिस्ट्री ऑफ एनी वर्ड। ठीक है, नॉट जस्ट द मीनिंग ऑफ द वर्ड बट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ड, कि ये वर्ड कहाँ से आया। एंड इट वाज कंपाइल्ड बाय हेमचंद्र बरुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स गो टू द 22nd क्वेश्चन एवरीवन। उड़ान प्रोजेक्ट, उड़ान प्रोजेक्ट, गेट सेट गो। 30 seconds. Very good, Prem. Very good, Sanket. Very good, Anushka. Nice, Ray. Good, Neha. Hi, Chakravarti. Welcome to this session. Can you please answer this question as well? शुभम, निमिषा, सुरजीत, बहुत बढ़िया। कोमल, guys, quick, huh? All right. So leaderboard, कोमल, निमिषिका, नेहा, सेम ही है। ठीक है, सो राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका। दे हैव डन इट इन कंसल्टिंग ग्रुप ऑफ आईपीई ग्लोबल, तो ये याद रखिएगा। इस प्रोजेक्ट का एम है टू कीप द गर्ल्स इन स्कूल थ्रू देयर इनरोलमेंट एट द सेकेंडरी लेवल एंड ऑल्सो इंश्योर दैट दे आर एलिजिबल टू गेट स्कॉलरशिप्स। इट स्ट्रेंथन्स द स्कॉलरशिप डिलीवरी थ्रू आईटी एनेबल्ड सर्विसेज। तो आप कहीं लाइन लगना नहीं पड़ेगा, किसी को रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 23 काफी इंटरेस्टिंग है और काफी ट्रिकी भी। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग इसका सही आंसर दे सकते हो। कोस्टल कम्युनिटी पर क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए किन किन स्टेट्स में हम ये करेंगे? वेरी गुड रे, संकेत। कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं? ये मेरा हिंट है आपके लिए। नेहा, निमिषिका, अभिषेक, प्रेम, अनुष्का। अनुष्का, यू आर गोइंग रियली गुड, हाँ, बट आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए हो शायद, इसीलिए लीडर बोर्ड पे ज्यादा नहीं दिख रहे। गुड जॉब, गुड जॉब। निमिषिका इज बैक ऑन द टॉप विद 20 करेक्ट आंसर्स। नेहा, निमिषा 19, रे एंड कोमल ऑल्सो 19। अब तो बहुत खतरनाक कॉम्पिटिशन है।
ओके, दो और क्वेश्चंस है, देखते हैं कौन लास्ट मोमेंट तक पहुंचता है। ऑलराइट, द सेंटर हैज इनिशिएटेड अ प्रोजेक्ट अक्रॉस दीज स्टेट्स, जिसकी प्राइसिंग दी हुई है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। जीसीएफ का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, 24th क्वेश्चन, वन हेल्थ। वन हेल्थ, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ ले, टाइम हमारे पास थोड़ा कम है गाइस, बट फिर भी करेंगे हम, सारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करके जाएंगे। गुड जॉब, गुड जॉब। Oh, fine. All done. Uttarakhand is the right answer, and Nimishika, Nimisha, Ray, Komal, Neha. Very good. Okay. सो उत्तराखंड पर चलते हैं, पॉइंट जल्दी जल्दी नोट करते हैं कि DAHD का फुल फॉर्म आप याद रखोगे, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। उन्होंने किया है उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट वन हेल्थ फ्रेमवर्क। इसका की ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप अ नेशनल वन हेल्थ रोड मैप, जिसके बेसिस पर आप पढ़ सकते हो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, इंटर स्टेट हेल्प ले सकते हो, एंड मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, ये अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हुआ है, एंड इट इज एस्टैब्लिश टू लीड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट, जो कि उत्तराखंड ने सेटअप किया है। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्योंकि सीमैट वाले हो तो स्टार्टअप से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन तो बनता है। सो हियर वी गो टू द लास्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, बिकॉज लास्ट क्वेश्चन तो सबको पता ही है। Wow, Ray, this is a streak of 20 correct answers from Ray, back to back. नेहा, निमिषा के 11 करेक्ट आंसर्स लगे हैं बैक टू बैक। अभिषेक, कोमल, मून, वेरी गुड, एंड टाइम अप। इसके साथ डेफिनेटली फाइनल लीडर बोर्ड में कोई तो चेंजेस होंगे। निमिषा ने टॉप कर गया है, सेकंड पोजीशन पर रे है, कोमल आ गई थर्ड पोजीशन पे, और निमिषिका सेम स्कोर लाकर भी टाइम की वजह से फोर्थ पर है। कोई बात नहीं निमिषिका, ये तो वही होगी वो टॉर्टोइस और हेयर वाली बात। इसीलिए आजकल की रेस में जल्दी भागना भी जरूरी है, कंसिस्टेंटली भागने के साथ साथ। नेहा, अभिषेक, हिमांशु, राघव, ईशान, शुभम एंड अदर्स, वेल डन, बहुत अच्छा। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ वाज द क्लास गाइस, ये भी बता दो जल्दी जल्दी। और जाने से पहले, सेशन के बाहर जाते ही आपको फीडबैक के लिए पूछा जाएगा, फीडबैक जरूर से दे देना। और इस क्वेश्चन का थोड़ा सा बता देती हूँ कि स्टैंड अप स्कीम जो है, इसका प्रमोट करना है एंटरप्रेन्योर्स अमंग वुमेन, ST/SC कैटेगरी, एंड टू हेल्प देम टू स्टार्ट अ ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज। ठीक है, इस स्कीम ने 6 साल कंप्लीट कर लिए हैं और अब तक 30,160 करोड़ लोन दे दिया है, सैंक्शन कर दिया है। ठीक है, ये काफी फेमस है। ऑल राइट, सो होप इट हेल्प्स यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एवरीवन। कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो डेफिनेटली पूछ लेना, एंड yeah, very good, thank you Nimishika for sharing it with everyone, and telegram का लिंक ऑलरेडी पिन्ड है गाइस, तो वहां ज्वाइन कर लेना ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। एंड कल वाली केस स्टडी वाली क्लास जरूर ज्वाइन करना 8 PM। ठीक है, मैं आपके साथ केस स्टडी टेलीग्राम में डायरेक्टली शेयर कर दूंगी, वो जरूर पढ़ लेना और फिर आना, मजा आएगा। एंड क्वेश्चन एक्चुअली होगा कि सपोज करो कि आपके पास एक एम्प्लॉय आता है जो कि बहुत टैलेंटेड है। ठीक है, बहुत ही टैलेंटेड, जैसा आपको चाहिए वैसा, लेकिन आपके कंपनी में से कोई उसे गूगल कर लेता है एंड दे गेट टू नो अबाउट हर पास्ट ऑन सोशल मीडिया, कि कैसे वो किसी तरह की चीज में इन्वॉल्व थी पहले, अभी नहीं है। तो क्या वो आपके डिसीजन को इफेक्ट करेगा? क्या उसके बेसिस पर आप किसी को हायर करोगे? So that question is what will be answered in the case analysis video tomorrow 8 PM. तो definitely join करना, वो आपको डेफिनेटली एज अ PI क्वेश्चन भी या फिर वैट राउंड में भी पूछा जा सकता है, तो डेफिनेटली ज्वाइन करना।
अच्छा सादिक, वो हम वहां डिस्कस करेंगे। इस तरह से बस मन में आया और बोल दिया, दैट्स नॉट केस स्टडी। केस स्टडी होती है सिचुएशनल एनालिसिस के बेसिस पर, हमारे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के बेसिस पर, तो हम वो वहां सीखेंगे, ठीक है। ऑलराइट देन, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सो मच मून, थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच शाइन। ऑलराइट गाइस, देन सी यू टुमारो एट 8 PM। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू।